हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस, यानी यहाँ पर सोशल साइंस के जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, इकोनॉमिक्स का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। और यहाँ कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम व्यू से जो ये क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट व्यू पे रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्लास 9 CBSE NCERT social science here. Next question arrive here, that's important. There is a what are the main feature of the National Rural Employment Guarantee Act 2005? That's important here. National Rural Employment Guarantee Act 2005. There is a mean to here NREG. NREG 2005 here. The main feature of the National Rural Employment Guarantee Act 2005 are his following here. You know that's important here. The first of all here, the act assures that 100 days of employment every year to every rural household. That's an important feature here. There is 100 days of the employment every year to the every rural household here. 1/3 of the job are reserved for a woman. That's important here. 1/3 of the jobs are reserved for a woman. It is also aimed to be sustainable development to address the cases of the drought, deforestation, and soil erosion. That's important here. The main aim at the stable development is to address the causes of the drought, deforestation, and soil erosion here. That's important. The share of SC, ST, and women are 23% and 70% and 53% is respectively here. You know that's important here. The SC quota is reserved here 23% and ST quota is reserved here 17% and women here 53% respectively here. You know that the rest amount here a general category. There is a rest here general category. That's important here. 30 total SC ST is a 30% here, 30 40%, and that's important. 40% SC ST quota reserve and 53% is a woman. General category is only 7%. That is an imagine here. Under this, the average wage has increased from rupees 65 in 2006 to 2007 to rupees 132 in the 2013 to 14. You know that the average wage
of this guarantee act here, the average wage is here 2006 and 2007 here only 65 rupees, but 2013 to 14 increasing here 132 rupees on this act. The scheme provide to employment to 220 crores per present day of the employment to the 4.78 crore household. That's important here. The scheme provide to employment to 220 crores present day of the employment to the 478 crore household. In March 2018, the wage rate for the unskilled manual workers has been to revise again statewide. That's important. The March 2018, the wage rate for the unskilled manual workers has been to be revised against the statewide here. The range of wage rate for the different state and union territory lies is between rupees 281 per day for the worker in Haryana and the rupees 168 per day from the worker in Bihar and Jharkhand. That is the range of rate of wage on different state and different union territory. That's important here for the exam view. आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती कक्षा 9वीं CBSE NCERT के अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है बुक। यहाँ सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स के पार्ट है ये। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये पर पर्सन को जो है यहाँ पर जॉब देने की गारंटी एक्ट के अंतर्गत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताओं पे हमने प्रकाश डालनी है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार था। पहली बात तो यहाँ यही आता है कि अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन के रोजगार का आश्वासन देता है। यानी इस गारंटी के अंतर्गत ये अधिनियम के अंतर्गत सरकार जो है ये गारंटी देता है आश्वासन देता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन के रोजगार जरूर दी जाएगी। 100 दिन की रोजगार। और देखा जाए तो इसमें 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1/3 करीबन 53% जो नौकरियां इसमें आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य सूखे वनों की कटाई मिट्टी के कटाव के कारण को संबोधित करने के लिए सतत विकास भी था। यानी देखा जाए तो इसमें वन रोपण के अंतर्गत बहुत से काम किए गए थे और सूखे वनों की कटाई मिट्टी कटाव के अंतर्गत सतत विकास के ऊपर इस पर ध्यान दिया गया था। अगर हम इसमें देखें तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 23%, 17% और 53% थी। तो आप समझ सकते हो कि इसमें अनुसूचित जाति के लिए यानी ST के लिए था 23% और अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए था 17% की आरक्षण प्रदान की गई थी और महिलाओं की हिस्सेदारी जो थी 53% था। अगर देखिए 23 और 17 को प्लस कीजिएगा तो कितना आता है 40% और 53% जो थी महिलाओं के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना रह गया, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 7% रह गया। अब देखिए क्या हो रहा है, हम आधुनिक युग में हैं कि हम पिछले देशों में गिने जाते हैं। 7% जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए इसमें आरक्षित रखा गया। क्यों? जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ही अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं। सरकार की नीतियां देखा जाए तो हर जगह जो है मुंह खा रही होती है, हर जगह फेल हो रही होती है क्योंकि इनकी नीतियां ही महान हैं। आज देखा जाए तो SC ST कोटा के लोग जो होते हैं सभी जगह अपना दबदबा बना रखे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं
आज या तो फांसी लगा रहे हैं या कहते हैं रो रो के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं या कहीं रेहड़ी लगा रहे होते हैं। कारण क्या है? सरकार की बेरुखी। सरकार को एक बात समझना चाहिए कि ये आधुनिक युग है। यहाँ पर SC ST कोटा का कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर बच्चों की मान्यता होना चाहिए, बच्चों की टैलेंट की मान्यता होना चाहिए। मैं एक आपको सच्चाई बता रहा हूँ। किसी बच्चों को अगर मान लीजिए वो जनरल कैटेगरी का है, वो पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छा है और कुछ अच्छा कोर्स करना चाहते, मान लीजिए मेडिकल ही करना चाहता है, तो उसको कभी एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा है और ना ही कोई कोटा है उसके पास। वो जनरल कैटेगरी का है। वो दिन रात कर मेहनत करके अच्छा डॉक्टर बन सकता था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उन बच्चों को पोस्ट मिल गया जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो एक बार एडमिशन करा लेंगे तो क्या पास नहीं होंगे? आप सभी कॉलेज के निरीक्षण कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। बच्चे लगे रहते हैं, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में, 3 साल, 4 साल, 10 साल में तो होगा ही होगा। कंपार्टमेंट आ जाती है, लोग पेपर देते रहते हैं, उधर लोगों को मारते रहते हैं दवाई दे दे के। और ये सच्चाई है, ये आज की हकीकत है। और ये कहीं ना कहीं इन सब जो आरक्षण जो दी जा रही है ना, उसका सबसे बड़ा परिणाम है। आज हमें पता है कि आज सभी माता पिता बहुत समझदार हो गए हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब बच्चों को अपना अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो SC ST कोटा, ये कोटाओं की जो बातें दी जा रही है वो गलत है। महिलाएं भी आज सशक्त हो चुकी है। हम महिलाओं को कोटा देके क्या दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती है, लाचार होती है, उनके पास कोई क्षमता नहीं होता, इसलिए हम उनको कोटा में डाल दिए। महिलाएं खुद सशक्त है, वो खुद काम करना जानती है, खुद ही मेहनत करना जानती है और पढ़ने में सबसे अव्वल है। उनको इसे कोटा की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आगे देखें तो इसके तहत औसतन वेतन जो था 2006 से 2007 में 65 रुपये से बढ़ाकर 2013-14 में 132 रुपया हो गया। यानी देखा जाए तो इसके तहत जो है औसत वेतन जो थी पहले 2006 से 7 में 65% ही था, जो बढ़कर 2013-14 में 132 रुपया हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और इस योजना से 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। कहते हैं ये योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें सरकार की बहुत वाहवाही हुई, क्योंकि इसमें 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं मार्च 2018 में राज्य भर में अकुशल मैनुअल श्रमिक के लिए मजदूर दर के फिर से संशोधित किया गया। तो देखा जाए तो भारत में संशोधन होने की सिलसिला कभी कमती नहीं है, हमेशा होती रहती है संशोधन। लेकिन ये संशोधन सिर्फ किताबी बातें होती है, ज़मीनी हकीकत यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्च 2018 में राज्य भर में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूर दर को फिर से संशोधित किया गया और बढ़ाया भी गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मजदूर दरों की सीमा 281 रुपया प्रतिदिन और हरियाणा में श्रमिकों के लिए रखी गई। यानी देखा जाए तो हरियाणा के श्रमिकों के लिए 281 रुपये प्रतिदिन वेतन रखी गई। वहीं देखा जाए तो बिहार और झारखंड में श्रमिकों के लिए 168 रुपया प्रतिदिन रखा गया। कहते हैं ये आंकड़े इतने छोटे हैं कि एक अलग सा ही हमें एहसास होती है, क्योंकि 281 रुपया और 168 रुपया, कहते हैं ये तो आज स्कूल जाने वाले बच्चों के जेब खर्च से भी कम है। तो सरकार आज इन आंकड़ों से जो है पूरा विश्व को जीतना चाहती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि पहले अपने घर को देखो, फिर दूसरे घर में झांको। भारत को पहले इन सब बातों से अपने आप को ऊपर उठाना है। दिखावा जीवन करने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। और एक कहावत तो आपको पता ही होगा कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। चादर से अगर बाहर पैर करोगे तो ये आपके लिए सही भी नहीं रहता है। लेकिन शायद ये बात हमारे देश की सरकार को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वयं ही समझदार हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था
अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चे को पहुँचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद कीजिए। ये सब आपके लिए ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा उतना त्रिपाण सेंटर आगे जाएगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर का मनोबल आगे बढ़ेगा, तो आपके लिए हर वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। हम दोनों अगर मिल के कार्य करेंगे तो आपका भी फायदा होगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर को भी फायदा होगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है और देश को जो है सुचारू रूप से ले जाना है। क्योंकि आप समझदार हो गए तो हमारा देश ऑटोमेटिक जो है महान बन जाएगा। तो हमारा उद्देश्य एक ही है, हम दोनों साथ चलेंगे, यही हमारा संकल्प है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लगा रहा है, तो जर्नल से बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। और नहीं भी है तो उसका कॉमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, कॉमेंट करोगे तो उसका भी वीडियो बनता रहेगा। तो जर्नल सी बात है, आपके लिए त्रिपाण सेंटर हमेशा हाजिर रहता है। ये सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।